متى ترانا ونراك متى ترانا. میں وہ قضیہ جس کی دیت ضرورت ہے اس کی نکیز میں امکان کی جہت لگائی جائے گی، اور وہ قضیہ جس میں دوام کی جہت ہے اس کی نکیز میں فعلیت کی جہت استعمال کی جائے گی. والسلام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کی نکیز امکان عام ہے اور دوام کی نکیز فعلیت ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، وعلیکم السلام. اور ضرورت کی 4 قسمیں ہیں، دوام کی 2 قسمیں ہیں حسب بیان المصنف. جن قضایا کے اندر ضرورت مقید ہے وصف کی قید سے یا وقت کی قید سے، جب نکیز نکالیں گے تو امکان جو کہ اس ضرورت کی نکیز ہے، جس قید سے یہ ضرورت مقید ہے اسی قید سے ہم امکان کو مقید کریں گے. وعلیکم السلام. دوام کی نکیز فعلیت ہے، تو جس قید سے پھر دوام مقید ہے جب نکیز نکالیں گے تو فعلیت کو بھی اسی قید سے. یہی تفصیل ہے نا کل کے درس میں. سوال یہ ہے کہ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ ضرورت کو رفع کیا جائے گا امکان کے ساتھ، دوام کو رفع کیا جائے گا فعلیت کے ساتھ، لیکن جس قید سے ضرورت مقید ہے وہی سیم قید پھر ہم امکان کے اندر لگائیں گے، فعلیت کے اندر لگائیں گے. یہ اگلی بات جو تم نے کہی ہے کہ بھئی وہ قید جس سے ضرورت مقید ہے، ضرورت کی نکیز ہے امکان، تو امکان کو بھی اسی قید سے مقید کریں گے. جس قید سے دوام مقید ہے، دوام کی نکیز ہے فعلیت، تو جس قید سے وہ دوام مقید ہے فعلیت کو بھی اسی. یہ سیم قید جو جس سے دوام اور ضرورت مقید ہے اسی قید سے ان کی جو جہت نکیز میں استعمال کریں گے اس جہت کو بھی اسی قید سے مقید کریں گے. اس کا راز کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا ہے؟ سب لوگ متوجہ ہو گئے ہیں؟ چونکہ کل اس کی تفصیل گزر چکی ہے، گراؤنڈ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں موجود ہے، صرف توجہ دلانا مقصود ہے. تو اگر سوال سمجھ میں آ گیا ہے تو کوشش کرو ججمنٹ کرنے کی کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے یا اس کی کیا ضرورت ہے. سوال سمجھ میں آئے تو پھر آپ جواب میں سوچیں، سوال سمجھ نہیں آئے تو آپ روک کے کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سوال کو رپیٹ کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے، رپیٹ کر دیتے. ہمارے پاس ضرورت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی، ضرورت وقتی اور ضرورت منتشرہ. جو ضرورت ذاتی ہے یہ کسی قید سے مقید نہیں ہے، لیکن باقی 3 تو کسی قید سے مقید ہے نا. ٹھیک ہو گئی بات؟ ضرورت کی نکیز کیا ہے؟ امکان. اچھا، پہلا قضیہ جو ہے وہاں ضرورت مقید نہیں ہے تو ضرورت کی نکیز آ جائے گی امکان. تو وہ امکان جو اس ضرورت ذاتی کی نکیز ہے وہ امکان بھی مقید ہے. باقی 3 قضایا کے اندر ضرورت مقید ہے، وصف کی کیسے، وقت معین کی کیسے، وقت غیر معین کیسے. ضرورت کی نکیز امکان، تو امکان تو ضرورت کی نکیز ہو جائے گا نا، لیکن یہ امکان جو اس ضرورت کی نکیز ہے اس امکان کو بھی اسی کیسے مقید کیا جائے گا جس کیسے. یہ واضح ہو رہی ہے بات؟ سوال یہ ہے کہ امکان کا ضرورت کی نکیز ہونا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ جو تم نے کہا ہے کہ یہ والی ضرورت جس قید سے مقید ہے
یہ ضرورت وصف کی کیسے مقید ہے؟ تو اس امکان کو جو اس ضرورت کی نقیض ہے اس امکان کو بھی اسی وصف کی کیسے مقید کریں گے. یہ ضرورت وقت کی کیسے مقید ہے؟ تو یہ امکان جو اس ضرورت کی نقیض ہے اس امکان کو بھی اسی وقت کی کیسے مقید کریں گے. یہ ضرورت وقت غیر معین سے مقید ہے تو امکان اس ضرورت کی جب نقیض بن کے آئے گا تو اس امکان کو بھی غیر معین وقت کی کیسے. تو امکان ضرورت کی نقیض ہے یہ واضح ہے، مگر اس امکان کو جو اس ضرورت کی نقیض ہے اس امکان کو بھی آپ حسب الترتیب اسی کیسے مقید بنائیں گے جس قید سے یہ اصل والی ضرورت، یہ نقیض والا امکان اس کو قید سے مقید کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے وحدت بتایا تھا نا. سوال سمجھ میں آ گیا ہے؟ اچھا تو پھر جواب دیا جائے. ہاں جی کیا فتویٰ ہے جی یہ خان جو صاحب تھوڑا؟ مثلاً وحدت ہم نے بیان کیا تھا اچھا تو اس میں ایک شرط بھی تھا، تو شرط میں بھی اتحاد ہونا چاہیے، اور وقت زمان میں بیان کیا تھا زمان میں اتحاد ہونا چاہیے، اس لیے اس میں بھی نقیض جو نکال رہے ہیں اس حساب سے نقیض میں بھی اتحاد ہونا چاہیے، ورنہ اس کی نقیض نہیں رہے گی. اچھا اور کوئی دوست عزیز؟ ہاں ہاں کون ہے؟ دونوں کا ضائع سچے ہو سکتے ہیں اگر ہم اس جہت کا مطلب لحاظ نہ رکھیں، یعنی دونوں کا ایسے سیم نہ ہو تو پھر نقیض نہیں بنے. ضرورت کی نقیض امکان. صحیح. اچھا اب جو قید وہاں جس ہے قید سے ضرورت مقید ہے یہ امکان جو ضرورت کی نقیض ہے اس امکان کو بھی اسی کیسے، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ضرورت جس قید سے مقید ہے اس قید کی وجہ سے اس قضیے کی ایک قسم بنی تھی. سوال یہ ہے کہ جب عزت کی نقیض نکالی گئی یہ والا امکان تو اس امکان کو اسی قید سے مقید کرنے کی ضرورت، یہی سوال ہے. اگر ہم اس کو نکالتے ہیں نا جی تو پھر یہ سوال آپ امکان میں نہیں ہے کہ امکان اس ضرورت کی نقیض ہے یا نقیض نہیں ہے، امکان میں سوال نہیں ہے. امکان کا اس ضرورت کے لیے رافع ہونا، امکان کا اس ضرورت کی نقیض ہونا واضح ہے. سوال یہ ہے کہ اس امکان کو تم نے اسی سیم قید سے مقید کیا ہے جس سیم قید سے یہ ضرورت مقید تھی. اس امکان کو جو نقیض میں آپ نے استعمال کیا ہے اس کو سیم قید سے مقید کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس کو دوسرے قضیے میں اگر اس قید کو نکالتے ہیں نا تو پھر ہمارے پاس وہ 4 قسمیں نہیں بنتی، پھر ایک ہی قسم باقی رہے گی. ضرورت ہے امکان اس ہم نقیض نکالنا چاہتے ہیں کہ بس مجہات میں تھوڑا اس کی قسمیں تھوڑا بنانا چاہتے ہیں. ہم وجہ کی نقیض نکالنا چاہتے ہیں، امکان لگایا تو اس کی نقیض نہیں کہلائی. جب ہم علیحدہ اس کی قید لگاتے ہیں تو قید کی وجہ سے ہماری 4 قسمیں بنتی ہیں، قسمیں بنتی ہیں نا. اگر ہم قید نہ لگائیں ہمارے پاس 4 قسمیں بنتی بھی نہیں ہیں. قسمیں 4 قسمیں نہیں بنتی ہیں اگر نقیض والے امکان کو مقید نہ کیا جائے تو. قسمیں بنانے کی خاطر ہمیں ضرورت ہے امکان کو بھی اسی سیم قید سے مقید کیا جائے. یہ لیاقت صاحب کا جواب اور ہے، تمہارا جواب اور ہے جی. اور جی قرآن آپ بولو کیونکہ سوال میں نے آپ کی خاطر رپیٹ کیا تھا. اس لیے کہ یہ قضیہ ہم اس کی بنا رہے ہیں نقیض، یہ بعض جگہوں پہ نقیض نہیں رہے گا. ممکن ہے کہ یہ دونوں ساتھ کا ہو جائے، یہ اپنی جگہ پہ وہ اپنی جگہ پہ. اچھا تو تو اسی قید کا اگر لحاظ نہ رکھا جائے، اگر سیم قید جس قید سے ضرورت مقید ہے تو اس کا نقیض اسی نہیں سیم بنے گا. قید کو ضرورت کی جو نقیض ہے، جو جہت ضرورت کی نقیض ہے اس جہت کو سیم قید سے مقید نہ کریں تو ہو سکتا ہے دونوں قضیے تو تناقض نہیں رہے گا. اچھا اس کا مطلب ہے آپ کا جواب ان کے ساتھ تھوڑا میچ کرتا ہے نتیجے میں. جی علامہ صاحب آپ کا سیم جواب ہے، توفیق من اللہ تعالی. ہاں متفق ہو گئے ہیں. حفص ہے ان دونوں یا ان دونوں کونین اور خان. اچھا ہاں ملک ادریس اتحاد والی بات ٹھیک ہے. ہاں اتحاد والی بات ٹھیک ہے. مشکور آپ کا یہ جواب ہے. لشاری صاحب تقلید کرتے ہو خان کی. جلیل عباس کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے، توقف ہے. علامہ صاحب آپ کچھ رہنمائی کریں گے؟ سوال سمجھ میں آیا ہے تو کوشش کرو کوئی ججمنٹ دو اپنی. حصہ لو، حصہ لیں گے تو انشاءاللہ جائے. تو یہی دو تھے جنہوں نے بیان کر دیے ہیں. سابقہ والا اور ایک وہ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ نتیج اس کتاب بنے گی کہ جب وہ ان 8 کا ذائقہ متحد ہو.
इत्तेहाद वाला फतवा है जी आप खान साहब के साथ मुत्तफिक। जी। ये और कल भी आपने ये बयान किया था कि अगर ये कैद नहीं लगाते तो कैद लगाने से पहले उसकी पहले वाले नकीज बाज मकामात पे वो सदका आती है। इस कैद लगाने की वजह से वक्त की या वस्फ की वो फिर वो नकीज बन जाती है। ये जो मैं गिरौन बनाता हूँ, सवाल उठाता हूँ, कोई आप लोगों का इम्तिहान लेना मकसद नहीं है मेरा, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ कि आपको दिक्कत में उलझाऊं। मेरा मकसद ये है कि आपका जो फहम का लेवल है वो दर्स के साथ साथ चलता रहे, ठीक है। अगर ये गिरौन नहीं बनाता हूँ मैं तो हो सकता है वो ईमान व ईमानी चलते रहें, मैं समझता रहूँ कि आपको फहम हासिल हो गया है और आप ईमान व ईमानी जो है वो आएँ और चले जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुमकिन है फिर हमारी इफादा और इस्तिफादा के दायरे से निकल जाए, ठीक है। तो मुझे ये अंदाज़ा रहे कि मेरी गुफ्तगू कुछ फ़ायदा दे रही है आप लोगों को, इसलिए ये ग्राउंड बनाता हूँ ताकि मैं जज कर सकूँ कि मेरी गुफ्तगू से आपके फ़हम में, आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ है। ठीक हो गई बात। सही जवाब वही है जो इत्तेहाद वालों ने दिया है, ठीक है। वहाँ जो 8 चीज़ें गुजरी है ना, उन 8 चीज़ों में एक चीज़ है वो है शर्त। याद है ना, मैं जानबूझ के शर्त का लफ्ज़ नहीं बोल रहा था, कायद का लफ्ज़ बोल रहा था। वो कायद वही शर्त ही होती है, ठीक है ना। इसलिए उस कज़िये को मशरूता कहते हैं, जो कि वहाँ पर महमूल का ज़रूरी होना मशरूत है, ठीक है ना। मशरूता नाम है या नहीं है? मशरूता कहाँ से निकला है? शर्त से। तो आप जब कहते हैं ना कातिब का मुतहर्रिकुल असाबे होना ज़रूरी है, मगर मुतहर्रिकुल असाबे होना जो ज़रूरी है ये मशरूत है। किससे? कि वो किताबत में मशगूल हो, हीनल किताबत से मशरूत है, इसलिए वहाँ उसको मशरूता नाम दिया गया। तो मैं जानबूझ के लफ्ज़ शर्त नहीं बोल रहा था, आपका तबादुल ना चला जाए कि वहाँ 8 इत्तेहाद वाली चीज़ों में इत्तेहादुल, ठीक है ना। वो कैद जो होती है ना वो शर्त ही होती है। हमने 8 चीज़ों की जो इत्तेहाद की वहाँ शर्त रखी है, वो उन 8 चीज़ों में से एक शर्त है, ये कायद वही शर्त ही होती है। तो अब जिस कायद से, अब कायद हटा दो, जिस शर्त से मशरूत है ये वाली ज़रूरत वाली जिहाद, ज़रूरत की जो नकीज़ निकालेंगे उस नकीज़ वाली जिहाद को भी सेम कायद से, सेम शर्त से मशरूत और मुक़य्यद होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आप इत्तेहाद फिल शर्त ज़रूरी करार दे चुके हैं। पैगाम वाज़ेह हो गया? अच्छा, वज़ाहिर लगता यह है कि उलमाए किराम कल की बहस को समझ चुके हैं। मुसन्निफ कहते हैं यहाँ तलक हमने जो तत्वीक मिसालों की दी है ये मुवज्जहात बसाइत की तत्वीक दी है, लेकिन हमारे पास मुवज्जहात की 2 किस्में, बसाइत और मुरक्कबात, और मुरक्कबात की तत्वीक हमने नहीं दी है। तो आज सिर्फ 2 मिसालें देंगे सिर्फ मुरक्कबात की तत्वीक के लिए, ताकि कुछ आपको एक आइडिया हो जाए, अंदाज़ा हो जाए कि मुवज्जहा मुरक्कबा की अगर नकीज़ निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे। लेकिन कल की तरह आज जो है पूरे सारे मुरक्कबात नहीं दोहराएंगे, सिर्फ 1 मिसाल या 2 मिसालें देंगे। मुतवज्जे हो गए? आज का दर्स शुरू करने लगे हम। मुसन्निफ कहता है जी मुरक्कबात की नकीज निकालने के लिए तरीकाकार ये है, पहले तरीका समझो। तरीकाकार ये है कि उस मुरक्कबा को आप खोल के उसके 2 अलग अलग कज़िये निकाल लो। मुरक्कबा जो है तो 2 अदद कज़ियों से मुरक्कब होता है ना, कि एक कज़िये से मुरक्कब होता है। मुरक्कब करने के लिए अज्जा कम अज कम 2 चाहिए, तो कम अज कम अज्जा उसके कितनी है? 2 हैं। जब 2 हैं तो उस मुवज्जहा मुरक्कबा के अज्जा को खोल दो। जब खोलेंगे तो आपको कितनी कज़िये मिल जाएंगे? 2, यानी 2 मुवज्जहात बसीता, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है। आपने 2 मुवज्जहा बसीता निकाल लिए,
फिर क्या करेंगे? अब दूसरा पॉइंट कहता है बसायत की नकीज तो तुम मालूम कर चुके हो ना। बसायत की नकीज कल के दर्स में तत्बीकन मालूम कर चुके हो। तो अब आपने उस मुरकबे को खोल दिया, दो अज्जा उसके निकल आए। जब दो अज्जा निकल आए तो एक मुवज्जह बसीता ये और एक ये, बेशक आप नंबर लगा दें, एक नंबर वाला दो नंबर वाला, तो दो मुवज्जहात बसीता आपको मिल गए और बसायत की नकीज आपको मालूम है। जो मालूम है उसी की रोशनी में इसकी भी नकीज निकाल लो, इसकी भी नकीज निकाल लो। यहां तक तो आसान है ना? अच्छा जी, दोनों की नकीज निकालने के बाद अब क्या करेंगे? कहते हैं अब आपने उन दोनों नकीजों को फिर जोड़ना है। क्यों? इसलिए कि नकीज मुरकबा किया है। तो ध्यान दो यार, फिर उन दोनों को नकीजों को आप जोड़ना है। ठीक, नकीजों को कैसे जोड़ेंगे? कहते हैं नकीजों को आप जोड़ेंगे अला नहविल कजिया मुनफासिला। मुनफासिला के कितनी अज़ा होते हैं? शर्तिया मुनफासिला के कितनी अज़ा होते हैं? मुनफासिला के दो अज़ा होते हैं कम अज कम। ठीक है, मुकद्दम और ताली। ठीक है ना? तो उन दोनों अज़ा को आपस में क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ेंगे किस शक्ल में जोड़ेंगे? कजिया शर्तिया मुनफासिला। अच्छा, अब अगली बात यह है कि मुनफासिला तो तीन है, हकीकिया, मानियतुल जम, मानियतुल खुलूब। तो हम जोड़ेंगे तो किस शक्ल का ये जुड़ेगा? कहते हैं ये जुड़ेगा मुनफासिला मानियतुल खुलूब। ठीक है? अच्छा, तो नतीजा ये निकला। आप तीन स्टेप बनेंगे। पहले स्टेप पे क्या करना है? तुमने उस मुरकबा को खोल देना है, दो बसीते आपने हासिल कर लेने। दूसरे मरहले में आपने जो बसायत की नकीज मालूम करने का आप तरीका जान चुके हो, उसकी रोशनी में उन दोनों बसीतों की नकीज निकाल लेंगे। दो मरहले, दूसरा मरहला हो गया। तीसरे मरहले में आके आपने क्या करना है? उन दोनों नकीजों को मुनफासिला मानियातुल खुलूब की शक्ल में कजिया मुनफासिला बना देना है। ये जो मुनफासिला मानियातुल खुलूब तुमने बनाया है, ये नकीज कहलाएगा। किसकी? उस मुवज्जहा मुरकबा की। तरीका सीख लिया तुमने? तरीका सीखोगे तो अगली बात कहूंगा यार। दीवार खड़ी होगी तो ऊपर प्लास्टर लगाएंगे ना, पहले लगा दूं? मैं लगा ये कारीगरी हमारी है, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तभी होगा जब आपके जहन में पहले एक चीज फहम में नक्श हो जाए, तो फिर उसके ऊपर मैं डिजाइन करूंगा। हाँ मशकूर, चल रहा है, जहन साथ साथ चल रहा है ना? मिसाल बाद में देंगे, अभी मिसाल नहीं देंगे। मिसाल देंगे जब ये सारा जो है प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल कोशिश करो कि आपकी जो तस्वरात जो है वो मेरे साथ चले, कैसेट साथ चले, ताकि रिकॉर्डिंग हो जाए। तीन स्टेप जहन में आ गए, कजिया मुनफासिला तक बात पहुंच गई। ये है जी तरीका मुवज्जहा मुरकबा की नकीज निकालने का। अब अगली बात सुनो और इसके बाद फिर मिसाल जिसका मुंतजर बैठे हैं आप लोग। पहला सवाल तो यह है कि मुरकबा की नकीज आपने मुनफासिला क्यों निकाली है? अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि मुनफासिला ही निकालनी थी तो मानियतुल खुलूब क्यों निकाली है? ठीक है, इन दो सवालों का जवाब, उसके बाद मिसाल आसान है। अगली बात इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। फिर वो कहते हैं पहला सवाल तुमने जो किया है ना कि भाई तुमने मुनफासिला क्यों निकाली है, दूसरा सवाल मुनफासिला ही निकाली है, तो उसकी तीन किस्मों में से मानियतुल खुलूब ही क्यों आपने मुअय्यन किया है? दो सवाल हो गए। जवाब सुनो। जवाब यह है, मुरक्कब चीज नकीज की तारीफ क्या है? रफ़ो कुल शैइन नकीज़ो। ठीक है ना?
जो आपने रफा किया है यही रफा करना उसकी नकीज कहलाता है। मुरक्कब को रफा करने के दो ऑप्शन है। मुरक्कब को रफा करने के कितने ऑप्शन है? दो। पहला ऑप्शन मुरक्कब को रफा करने का यह है कि उसका कोई एक जुज रफा कर दो, एक जुज के रफा करने से मुरक्कब रफा हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है जी? मुरक्कब का एक जुज रफा हो जाए, उससे निकाल दिया जाए, मुरक्कब रहेगा? नहीं रहेगा, मुरक्कब टूट जाएगा। तो पहला ऑप्शन है मुरक्कब का कोई एक जुज रफा कर दो, मुरक्कब के वजूद से हटा दो, निकाल बाहर कर दो, तो मुरक्कब टूट जाएगा। मुरक्कब का टूटना ये मुरक्कब की नकीज है। ठीक है, तो मुरक्कब के किसी एक जुज को रफा करना ये एक पहला ऑप्शन है उस मुरक्कब को रफा करने का। ठीक, मुरक्कब रफा हो जाता है किसी एक जुज को रफा करने से, और रफा करना ही नकीज है। तो गोया नकीज हासिल करने का पहला ऑप्शन क्या है? कोई एक जुज की नकीज निकाल दो, तो किसी एक जुज की नकीज उस पूरे मुरक्कब की नकीज कहलाएगी। पूरे मुरक्कब की नकीज क्यों कहलाएगी? क्योंकि मुरक्कब टूट जाता है एक जुज के टूटने से। यह है एक तरीका, एक ऑप्शन मुरक्कब को रफा करने का। मुरक्कब को रफा करने का दूसरा ऑप्शन यह है उसके जितनी अज्जा हैं सब अज्जा को रफा करो। ठीक है ना, यह है मुरक्कब को बिल्कुल मिया बेल मिया मुनहदिम कर देना। दूसरे ऑप्शन में मुरक्कब मिया बेल मिया मुनहदिम हो जाएगा। मुरक्कब के जितने अज्जा हैं सब के सब अज्जा को रफा कर दो। हमारी वाली मिसाल के अंदर उसके अज्जा दो है। अच्छा, तो किसी एक जुज को रफा करो, पहला ऑप्शन, तो अभी मुरक्कब टूट जाएगा, मुरक्कब रफा हो जाएगा। मुरक्कब के दोनों अज्जा, दोनों इसलिए बोल रहा हूं चूंकि उसके अज्जा थे ही दो। अगर कोई मुरक्कब ज्यादा अज्जा वाला है तो फिर आप ज्यादा अज्जा की गिनती करोगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो दे रहा हूं उसमें क्या है कि आपने उसके सारे अज्जा को रफा करना है। अच्छा, तो मिसाल में आ जाओ, जितनी अज्जा हैं यानी दो अज्जा हैं हमारी वाली गिनती के मुताबिक, तो दोनों अज्जा को रफा करो, तो दोनों अज्जा को रफा करने से भी मुरक्कब रफा हो जाएगा। तो मुरक्कब के रफा होने के ऑप्शन कितने हो गए? दो। रफा करने को क्या कहते हैं? नकीज। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि मुरक्कब की नकीज हासिल करने के ऑप्शन कितनी हो गए? दो। एक जुज की नकीज निकालो तो भी मुरक्कब की नकीज हासिल हो जाएगी, दोनों जुज की नकीज निकालो तो भी ठीक हो गई ना बात? अच्छा, वो कहता है मुनफासिला हमने इसलिए बनाया है चूंकि मुनफासिला में होती है तरदीद, और तरदीद का मतलब होता है कि कोई एक। ठीक है ना, मुनफासिला में क्या होती है? दोनों अज़ा के दरमियान तरदीद होती है, और तरदीद क्या इज्तिमा का फायदा देती है? इनफिसाल का, कि इनमें से कोई। मुनफासिला हमने इसलिए बनाया है कि इनमें से कोई एक जुज उसकी, ये पहले आप तरदीद हम लेके आ रहे हैं ताकि तरदीद में चूंकि कोई एक होता है, दोनों एक साथ। अच्छा, तो तरदीद इज्तिमा का कम नहीं देती, कोई एक जुज जो है तरदीद किसी एक जुज को नकीज करार दे देगी। तरदीद इसलिए लेकर आए हैं ताकि इशारा हो जाए तरदीद से किस ऑप्शन की तरफ? जो पहला ऑप्शन है कि किसी एक जुज के जरिए आप कुल को, मुरक्कब को रफा कर सकते हो। तो इसलिए हम मुनफासिला लेकर आए हैं क्योंकि मुनफासिला में तरदीद होती है, और तरदीद जो होती है वो इशारा होती है कि कोई एक इनमें से उसकी नकीज है, और ये इशारा हो जाएगा मुनफासिला का या तरदीद का इशारा हो जाएगा किधर? कि इनमें से कोई एक जुज जो है उसकी नकीज। मानेतुल खुलूब क्यों लेकर आए हो? कहते हैं मानेतुल खुलूब इसलिए लेकर आए हैं कि मानेतुल खुलूब में दोनों का इर्तिफा एक साथ नामुमकिन होता है, दोनों का इज्तिमा जायज होता है। मानेतुल खुलूब में जमा हो, दोनों जमा हो सकती है ना। तो मानेतुल खुलूब इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हम कहना ये चाहते हैं कि ये तो हो सकता है कि ये दोनों जुज मुनफासिला के एक साथ उस मुरक्कब की नकीज हों।
ठीक, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इन दोनों में से कोई भी उसकी नकीज ना हो। समझो यार, लफ्ज को समझो। माने तो खुलू समझा रहा हूं, और माने तो खुलू समझ तभी आएगा जब पहले माने तो खुलू की बहस में जो हमने तफसीर या तस्वीर बनाई है वो ज़हन में अगर फोकस है तो मेहरबानी करो। दोनों उठ ना सकते हो। हाँ, मैं एक एक लफ्ज करके बोलने लगा हूं, उसको फोकस करो। ये नहीं हो सकता, दो जुज हैं, ये नहीं हो सकता कि इन दोनों में से कोई भी उस मुरक्कबा की नकीज ना हो। अच्छा, मैं इसको बदल देता हूं, इन दोनों में से कोई भी उस मुरक्कब की नकीज नहीं है। न ये उसकी नकीज है, न ये उसकी नकीज है। लफ्ज़ ना ये, लफ्ज़ ना जब बोलेगा तो रफा का काम देगा ना, नफी का काम देगा। नफी रफा को कहते हैं। ना ये जो उसकी नकीज है, ना लफ्ज़ ना जब लगाऊंगा तो सल्ब का माना आएगा, नफी का माना आएगा। सल्ब और नफी क्या करती है? रफा कर दिया है। तो मतलब ये कि दोनों जुज को मैंने क्या किया है? रफा कर दिया है। रफा जब कर दिया है तो फिर दोनों जुज रफा हो गए। और ये माने तो खुलू है। खुलू का मन है कि इन दोनों का खुलू करना, रफा करना एक साथ ममनू है। किसी एक को उसकी नकीज मानना पड़ेगा, और जब किसी एक को नकीज मानना पड़ेगा तो ये इशारा हो जाएगा उस पहले ऑप्शन की तरफ जो कहता है कि मुरक्कब रफा हो जाता है किसी एक जुज के रफा करने से। और मानियतुल खुलू में चूंकि दोनों अज़ा का जमा होना जायज है, ठीक है ना, एक साथ रफा होना ममनू है, एक साथ जमा होना तो जायज होता है। अच्छा, तो खुलू के अंदर चूंकि दूसरा पहलू यह है कि वो दोनों आपस में जमा हो सकते हैं। जमा हो सकते हैं का मतलब कि ये दोनों जुज उसकी नकीज हो सकते हैं। यानी ये तो हो सकता है कि ये दोनों जुज उसकी नकीज हों, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इन दोनों में से कोई भी उसकी नकीज ना हो। जब दोनों जुज नकीज हो सकते हैं, ये ऑप्शन में मौजूद है। इन दोनों में से कोई एक उसकी नकीज है, ये भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी नकीज ना हो, ये है दोनों का इर्तिफा, और ये मानतुल खुलू है, दोनों का एक साथ इर्तिफा। तो अब हमारे पास तीन लफ्ज हैं, तीन जुमले हैं, दोबारा बोलने लगा हूं। ये हो सकता है कि दोनों जुज उस मुरक्कबा की नकीज हों। ऑप्शन ज़हन में आए तो साथ साथ मिलाते जाओ। ये हो सकता है कि मुनफासिला के दोनों जुज उसकी नकीज हों। ये भी हो सकता है कि मुनफासिला के दोनों अज़ा में से कोई एक उसकी नकीज हो। ये इशारा किसकी तरफ है? आसान तुम। ये नहीं हो सकता कि दोनों में से कोई भी उसकी नकीज ना हो। ये माने तो खुलू हो गया है। कोई बात समझ आई है नहीं आई? तो कहता है हम मुरक्कबा की नकीज निकालेंगे मुनफासिला। मुनफासिला इसलिए कि मुनफासिला के दरमियान अज्जा में होती है तरदीद, और तरदीद से हम इशारा देंगे पहले ऑप्शन की तरफ, जो ऑप्शन कहता है कि मुरक्कब रफा हो जाता है किसी एक जुज के रफा करने से भी। और मानियतुल खुलू इसलिए, दो सवाल थे ना। पहला सवाल ये था कि आपने मुनफासिला क्यों लाया है? मुनफासिला इसलिए लाए हैं क्योंकि मुनफासिला की अज़ा में होती है तरदीद, और तरदीद के जरिए इशारा करेंगे हम किसी एक जुज के रफा वाले ऑप्शन की तरफ। और मुनफासिला का फिर मुनफासिला है तो मुनफासिला होती है तीन, तो उनमें से आपने मानियतुल खुलू ही क्यों मुअय्यन किया है? कहते हैं मानियतुल खुलू इसलिए मुअय्यन किया है क्योंकि मानियतुल खुलू के दोनों अज़ा आपस में जमा हो सकते हैं, और चूंकि इम्कान मौजूद है कि ये दोनों अज्जा ही उसकी नकीज हों, तो ये इशारा हो जाएगा दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो दोनों ऑप्शन जो उस मुरक्कबा की नकीज हासिल करने के हैं, दोनों ऑप्शन हमने जम कर दिए हैं। किसके अंदर? मानियतुल खुलू के अंदर। इसलिए मुरक्कबा की नकीज क्या आएगी? ठीक है, अब आ जा मिसाल की तरफ। मिसाल चाहिए ना मुझको? मिसाल के बगैर जो है बात मुकम्मल नहीं होगी। हाँ भी खान मिसाल दे यार। मुरक्कबा ले आओ, पहले मुरक्कबा की मिसाल ले आओ वहां से। मुरक्कबा क्या था हमारे पास? वजूदिया की मिसाल है, वजूदिया की जो आसान है, आम फहम है। मुरक्कबा वजूदिया मुरक्कबा है ना, वहां कजिया वजूदिया जो है वो मुरक्कबा की मिसाल में है। क्या मिसाल है उसकी? कुल्लु इंसान मुतनफ्फिस बिलफेले ला दायमान, यही वजूदिया है।
पहले यार इसको मुयन करो कि ये कजिया मुवज्जहा मुरकबा है, क्योंकि पूरे प्रोसेस की तजवीज दे रही है ना हमने। कुल्लो इंसान मुतनफ्फिस बिल फेल, यहां तक बात ठीक है। हर इंसान मुतनफ्फिस है, बिल फेल है, 3 जमानों में से किसी एक जमाने में मुतनफ्फिस है या नहीं है? समझ नहीं आ रही तो हर बंदा अपनी सांस लेके देख ले। कुल इंसान मुतनफ्फिस बिल फेल है, बिल फेल हर इंसान मुतनफ्फिस है, ठीक है ना। इंसान का मुतनफ्फिस होना दायमी है जाती तौर पे नहीं, तो हर इंसान का जाती तौर पे मुतनफ्फिस होना दायमी नहीं है। जब नहीं है तो हमने आगे इसको मुकय्यद कर दिया, ला दायमन हर इंसान का मुतनफ्फिस होना बिल फेल, ये तो ठीक है, मगर जाती तौर पे हर इंसान का मुतनफ्फिस होना ला दायमन दायमी नहीं है। तीनों जमानों में इस्तिमरार के साथ तनफ्फुस का साबित होना नहीं है, ठीक है ना। तो फिर कोई एक जमाना है जिस जमाने में वो मुतनफ्फिस नहीं है, वो कौन सा जमाना है? जब सांस को खारिज कर रहा है। तो ला दायमन हमने लगा दिया, जब ला दायमन लगाया 2 जिहत हो गई, एक बिल फेल एक ला दायमन, कजिया क्या हो गया? बसीता मुरकबा, ठीक है ना। अब पहले मुरकबा समझाना पड़ गया, इतना दूर से जो है वो स्टार्ट लेना वक्त का ज़िया है, कुछ तामन करो यार। तो मुरकबा सामने आ गया है। अब इस मुरकबा की क्या करनी है? हमने नकीज निकाली है। नकीज निकालने के लिए कितने मरले बनाए हमने? बनाओ। पहला मरला क्या है? मुरकबा को खोल दो, खोल के इसके 2 कज़िए निकालो। कौन कौन से कज़िए निकलेंगे? कुल्लो इंसान मुतनफ्फिस बिल फेल ला शैआ मिनल इंसान बेमुतनफ्फिस बिल फेल, 2 कज़िए फेल ये निकला है, ठीक हो गए ना बस। अच्छा, पहला मरला हो गया, खोल दिए। अब आपको बसायत की नकीज का पता है, फेलिया की नकीज क्या होती है? तमाम आसान। तो अब इन दोनों की नकीजें निकालो। नकीज निकालने के लिए काम का इख्तलाफ सामने रखो, और जिहाद की नकीज का ये फेलियत है तो फेलियत की नकीज दमाम के साथ। अब अगला मरला नकीज निकालने का शुरू करो ना। पहला कज़िया क्या? कुल्लो इंसान मुतनफ्फिस बिल फेल, मुजबा की नकीज क्या आएगी? सालबा। क्या? बाजुल इंसान लैसा बेमुतनफ्फिस बिल दमाम है, आसान। तुम दूसरे की नकीज निकालो, ला शैआ मिनल इंसान बेमुतनफ्फिस बिल फेल, सालबा कुलिया है, क्या नकीज आएगी? मुजबा जुज़िया क्या आएगी? बाजुल इंसान मुतनफ्फिस दायमन, दायमन यानी बिल तमाम। बाजुल इंसान मुतनफ्फिस बिल तमाम, बाज इंसान मुतनफ्फिस है बिल तमाम। बिल तमाम यानी बिल इस्तिमरार, बस सांस ले ही रहा है, खारिज नहीं करता, ठीक हो गई बात। 2 नकीजें निकल गई। अब दोनों नकीजों को जोड़ दो, तीसरे मरले में आ जाओ। जोड़ो, क्या बनेगा? इम्मा, इम्मा लगाओ ना, मुनफसिला बनेगा। इम्मा पहला क्या था? बाजुल इंसान लैसा बेमुतनफ्फिस बिल तमाम व इम्मा बाजुल इंसान मुतनफ्फिस, ठीक हो गई बात। लिख लिया, लिख लिया, रिपीट करो। इम्मा के साथ मुनफसिला। इम्मा बाजुल इंसान मुतनफ्फिसुन बिल दमाम व इम्मा एक मुजबा एक सालिबा। अब देखो ये दोनों अतराफ जो हैं कज़िए की, या बाज इंसान बिल दमाम मुतनफ्फिस है, या बाज इंसान बिल दमाम मुतनफ्फिस नहीं है, ठीक है ना। ये जो आपने मुनफसिला निकाला है, ये उस मुरकबा की नकीज है। वो साबका है तो फिर ये कसबा है, ठीक है ना। और अब दोनों ऑप्शन है नकीज निकालने के, इन दोनों में से या तो कोई एक उसकी नकीज है या दोनों नकीजें हैं। दोनों इसलिए नकीजें हो सकते हैं क्योंकि ये मानियतुल खुलू है, मानियतुल खुलू में दोनों अतराफ जमा हो सकते, या कोई एक नकीज है चूंकि तरदीद लेकर आया हो, तरदीद का इशारा किसी
एक तरफ, एक जानब की तरफ होता है। वाज़ेह हो गई बात, तत्बीक हो गई, ये नहीं हो गई। ये मुनफासिला जो कि काज़िबा है, नकीज है, किसकी? उस तुम्हारे कजिया मुवज्जहा मुरक्बा की, जो कि क्या है? कुल्लो इंसान मुतनफ़िस बिल फेले ला दाइमन। उसकी नकीज क्या निकली? या बाज इंसान बिल दमाम मुतनफ़िस है, या बाज इंसान बिल दमाम मुतनफ़िस नहीं है। ये नकीज है उसकी, और मेरे ख्याल दोनों का सिद्ध करके वाज़ेह है, तत्बीक मुकम्मल हो गई है। अच्छा, अगली बहस शुरू करने से पहले इसकी तत्बीक हो जाए। मुसन्निफ कहता है कि मुवज्जहा मुरक्बा अगर कुलिया हो तो उसकी नकीज निकालने का तरीका यही है जो आप सुन चुके हो और उम्मीद है कि समझ चुके हो। अगर मुरक्बा मुवज्जहा जुजिया है तो फिर उसकी नकीज निकालने का तरीका अलग है। चूंकि उसकी नकीज निकालने का तरीका अलग है तो उसको अलग बयान करेंगे ताकि वो इसके साथ मिक्स ना हो जाए। ठीक है ना? खान से किताब दो फिर। कौलहू मुसन्निफ का कौल वलिल मुरक्कबाते, मुवज्जहा मुरक्कबा के लिए नकीज निकालने का तरीका क्या है? कहता है वो ये है, कद अलिमता आप जान चुके हैं, अन्ना नकीजा कुल्ले शैइन रफ़उहु चीज का रफा करना ही उसकी नकीज कहलाता है। फालम तो फिर आपको मालूम होना चाहिए, अन्ना रफ आल मुरक्कबे इन्नमा यकूनो यानी इन्नमा यहसुलु, मुरक्कब का रफा हासिल हो जाता है बेरफ ए आहदे जुज आए है, किसी एक जुज को रफा करने से। ठीक है ना? अच्छा, तो ला अल तायीन, लेकिन किस जुज को रफा करके? कहते ला अल तायीन, तायीन ना लेकर आओ। ला अल तायीन का इशारा किधर हो गया है? यानी बेरफ ए आहदिल जुज आए है अलाल तरदीद। ला अल तायीन का इशारा किधर हो जाएगा? अलाल तरदीद। तरदीद का क्या मतलब है? मुनफासिला। ला अल तायीन या तरदीद का इशारा किधर है? मुनफासिला की तरफ। मुनफासिला बनाओ, किसी एक जुज के रफा करने से वो मुरक्कब रफा हो जाएगा। अच्छा, अगली बात सुनो, कहता है बल अला सबील, वो सिर्फ तरदीद है, और तरदीद की कितनी किस्में हैं? 3। वो जो मुनफासिला की 3 किस्में हैं वो तरदीद की 3 किस्में हैं भाई, क्योंकि मुनफासिला तरदीद का ही दूसरा नाम है। बल्कि वो तरदीद जो होगी अला सबीले मानिल खुलू, मुनफासिला मानेतुल खुलू की तर्ज पे लेकर आएंगे। क्यों मानेतुल खुलू लेकर आएंगे? क्योंकि यजूज़ो अन यकूना की ज़मीर जाएगी उस रफ़ उल मुरक्कब की तरफ। वो मुरक्कब का रफ़ा जो है वो हासिल हो सकता है बेरफ़ ए किला जुज़ आए है, दोनों जुज़ के रफ़ा करने के साथ, और दोनों जुज़ के एक साथ रफ़ा करने की गुंजाइश मानियतुल खुलू में होती है, क्योंकि उसके दोनों जुज़ एक साथ जमा हो सकते हैं। पैगाम पहुंच गया है? तो अब नतीजा देखो, इस बात के अंदर कितनी तफसील थी, और मैंने एक एक करके सारी जो है आपको दे दिया है, और उम्मीद रखता हूं कि समझ गया है। तकरार की गुंजाइश नहीं है, बैटरी डेड हो गई है। फ़नकीज़ुल कज़िया अल मुरक्कबा, कज़िया मुरक्कबा मुवज्जहा की नकीज निकालने के लिए क्या करोगे? नकीज़ो आहदे जुज़ आए है, किसी एक जुज की आप नकीज निकालो, अला सबीले मानिल खुलू, लेकिन निकालो मानियतुल खुलू की तर्ज पे। ठीक, अब इसके अंदर जो बाकी तफसील है वो छोड़ गया है, जो मैंने 3 स्टेप बनाए गए हैं वो मुसन्निफ ने मेरे ज़िम्मे लगाए थे कि आपने इनको बता दिया, हमने बता दिया। फ़नकीज़ो कौले ना। अच्छा, अब ये जो हम मिसाल दे रहे हैं, कुल्लु कातिब मुतहर्रिकुल असाबे बिल ज़रूरते मादामा कातिबन ला दाइमन, हर कातिब का जो मिसदाक है यानी ज़ैद, उस ज़ैद का
متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے. کب ضروری ہے؟ مادام کاتبان، جب تک وہ کتابت میں مصروف ہے. لیکن زائد کے لیے، کاتب کے مصداق کے لیے ذاتی طور پر متحرک الاصابع ہونا دائمی نہیں ہے. ذاتی طور پر انگلیاں حرکت میں رہیں، ذاتی طور پر انگلیوں کا حرکت میں رہنا یہ بالدوام ثابت نہیں ہے. اچھا، کیونکہ وہ حرکت الاصابع کتابت کی شرط پر اس کے لیے ضروری ہے، ذاتی طور پہ اس کے لیے دائمی نہیں ہے. حرکت الاصابع والی صفت ہے. اچھا، تو قضیہ مرکبہ ہو گیا نا. ایک جہت کیا ہے تمہارے پاس؟ بل ضرورت مادام کاتبان. دوسری جہت کیا ہو گئی؟ لا دائما. لا دائما سے اب دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہو گیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے مرکبہ کو پہلے کھولنا ہے. لا دائما کا اشارہ کدھر ہے بھائی؟ لا شیء من الکاتب بے متحرک الاصابع بالفعل. کاتب کا جو مصداق ہے وہ بالفعل کسی ایک زمانے میں متحرک الاصابع نہیں ہوتا. وہ کون سا زمانہ ہے جس زمانے میں متحرک الاصابع نہیں ہوتا؟ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں وہ کتابت سے مصروف نہیں ہوتا. اچھا، اب سنو، قضیۃ منفصلۃ خبر ہے، مبتدا کدھر ہے اس کی؟ یہ تو خبر ہو گئی نا. فا نکیز المرکبات قضیۃ منفصلۃ. درمیان والی بار سیٹ کر دو، مبتدا اور خبر کو جوڑ دو. فا نکیز المرکبات، مرکبہ کی نکیز قضیۃ منفصلۃ مانعۃ الخلو. وہاں کرو یار، عبارت کا ربط معلوم ہو گیا ہے نا. اچھا، واہیا قولنا، اور وہ کیا ہے قضیہ جو نکیز ہے؟ واہیا، اور یہ ہے اس قضیہ جو ہم نے مثال میں پیش کیا، مبتدا خبر کے درمیان میں جو قضیہ ہم نے بطور مثال پیش کیا ہے اس کی نکیز یہ ہے. کیا؟ اما بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع بالامکان. ہم نے مثال دوام کی دی تھی، ابھی امکان کی آ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت کی نکیز امکان ہے. آسان تو بعض کاتب متحرک الاصابع نہیں ہے بالامکان، اور ممکن ہے اس کاتب کا مصداق کا متحرک الاصابع نہ ہونا ممکن ہے. کس وقت؟ ہین ہوا کاتب، ہین الکتابت ممکن ہے وہ متحرک نہ. وَإِمَّا، یا بعض الکاتب متحرک الاصابع دائما، یا بعض کاتب متحرک الاصابع ہیں دائماً، ذاتی طور پہ دائماً متحرک الاصابع ہیں. یہ نکیز ہو گئی اس کے دوسرے جز کی. تو ان کے درمیان ہم نے تردید لا دیا ہے. وَأَنْتَ، بات مکمل ہو گئی بھائی. کچھ سمجھا ہے تم نے؟ نہیں سمجھا ہے؟ بس یہی کچھ ہے، ہمارا راتب اتنا ہی ہے. وَبَعْدَ اطِّلَاعِكَ عَلَى حَقَائِقِ الْمُرَكَّبَاتِ. یہ کیا پہلے اس میں اما بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع بالامکان حین هو الکاتب. ہاں دائما دائما جو ہے یہ نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ امکان ہم نے لگائے دو جز ہیں نا. ایک جز جو ہے وہ ضرورت سے مقید ہے، دوسرا جز فعلیت والی جہت سے مقید ہے. جو جز ضرورت سے مقید ہے اس جز کی نکیز میں امکان لے آئیں گے، جو جز فعلیت سے مرکب ہے اس کی نکیز میں دوام لے آئیں گے. پھر دونوں جزوں کی آپس میں تردید لے آئیں گے، منفصلہ معنی الخلو بنا دیں گے. جو سٹاپ جو تین بنائے ہیں نا وہ ذہن میں لے آؤ نا. وَأَنْتَ بَعْدَ اطِّلَاعِكَ عَلَى حَقَائِقِ الْمُرَكَّبَاتِ. آپ لوگ مطلع ہیں، کس پر مطلع ہیں؟ مرکبات کے حقائق پر. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کون سا مرکبات کن دو بسیطوں سے مل کے بنا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ یہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کون سا مرکبہ کن دو بسیطوں کو جوڑ کے بنا؟ وہ جن دو بسیطوں کو جوڑ کے بنایا گیا نا وہی اس مرکبہ کی حقیقت ہے. تو آپ مرکبات کے حقائق پر، یعنی مرکبات جن بسائط کو جوڑ کے بنایا جاتا ہے ان بسائط پر آپ مطلع ہیں. حقائق کا ترجمہ سمجھ گئے ہو نا. وَنَقَائِصِ الْبَسَائِط، اور آپ بسائط کی نکیزوں کو بھی جانتے ہو. کدھر اشارہ دے رہا ہے؟ وہ جو تین ہم نے مرلے بنائے تھے. تتمکن، تو اب آپ متمکن ہو گئے ہیں من استخراج التفاصیل، تفصیلاً آپ اس کی نکیزیں معلوم کر سکتے ہو. یہاں تک کچھ فائدہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ ہو گیا ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف منتقل ہو جائیں.
अच्छा, सलवात पढ़ें फिर एक बार। मुसन्निफ कहता है कि मुरक्बा मुवज्जहा अगर कुलिया हो तो उसकी नकीज निकालने का प्रोसेस और तरीकाकार यही है जो हमने अभी बयान किया है। अब आ जाओ मुरक्बा मुवज्जहा जुज़इया की तरफ। अगर मुरक्बा मुवज्जहा जुज़इया है तो फिर उसकी नकीज निकालने का तरीका और प्रोसेस मुख्तलिफ है। ठीक है ना। पहले आप एक मिसाल मुअय्यन करो ताकि उस मिसाल को सामने रख के फिर उसका मैं आपको तरीका बता सकूं। खान मिसाल देने की जिम्मेदारी तेरी है। बाज़ुल इंसान मुतनफ़िसुन बिल फ़िअल लाता है। ओरिजिनल मिसाल दो, आसान आम फहम मिसाल दो। बाजुल हैं लादा है कस बात है सद का ले आओ, सद का मिसाल ले आओ। बाजुल इंसान कातिबुन बिल फेले ला दाइमन। ओरिजिनल मिसाल है, कजिया मुरकबा भी है, जुजिया भी है। बाजुल इंसान कातिब बिल फेल, बाज इंसान बिल फेल कातिब है। ला दाइमन मगर वो बाज जो बिल फेल कातिब हैं जाती तौर पे उनका कातिब होना दायमी नहीं है। ठीक हो गई बात। अच्छा, तो ला दायमी का इशारा किधर हो जाएगा? बाज और इंसान लैसा बे कातिब बिल फेल, बाज इंसान बिल फेल कातिब नहीं है। मुवज्जहा है, मुरकबा है, जुजिया है। ठीक हो गई बात। अब आओ मुसन्निफ कहते हैं मुरकबा जुज़इया की नकीज निकालने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है उस कुलिया से। तरीका क्या है? कहते हैं तरीका यह है कि पहला मरला सेम है, उसको खोल दो, दो बसीते निकालो। ठीक है। दूसरा मरला भी सेम है, उन दो बसीतों की नकीज निकालो। तीसरे मरले में जब आओगे तो थोड़ा फर्क आ जाएगा। ठीक है। फोकस करो इसको, पहली बात जो है सपोर्ट करेगी ना इसको समझने में। तीसरे मरले में हम क्या करते हैं, वहां पिछली गुफ्तगू में नकीजों को जोड़ के मुनफासला बना दो। कहते हैं आप रुको, ये जो तीसरा मरला है कि आप दोनों नकीजों को जोड़ के तरदीद लाते हो। ठीक, यहां आपने थोड़ी पहले से तब्दीली रखनी है। तब्दीली क्या करनी है? कहते तब्दीली यह है कि इन दोनों कजियों का मौजू एक है। मौजू एक है या अलग अलग है? कजिया जो मुरकबा होता है, मुरकबे के दोनों कजियों का मौजू एक होता है। जो आप नकीजे निकालेंगे तो दोनों का मौजू, दोनों का नकीजों का मौजू क्यों एक रहेगा? इत्तेहाद और मौजू की शर्त है। ठीक है ना। तो आपने इस जुज की नकीज निकाली है, दूसरे जुज की नकीज निकाली है। अब ये दोनों जुजों की दो नकीजें तुम्हारे पास हैं। ये दोनों कजिए जो नकीजें हैं, ये नकीज इसकी ये इसकी, दोनों का मौजू एक है। जब दोनों का मौजू एक है तो तकरार को गिरा दो। ठीक है ना। तकरार को गिरा दो। जब तकरार को गिरा दोगे तो दोनों का मौजू यकजा हो जाएगा, एक। जब मौजू एक हो जाएगा तो दोनों के महमूल आपके पास बच जाएंगे। वो बात समझ आ रही है यार? एक मौजू दो महमूल, एक मौजू दो महमूल। आसान तुम, क्योंकि आपने तकरार को खत्म किया है और मौजू जो है वो मुतकर्रिर है। इधर मौजू वही है, उधर मौजू वही है, महमूल का फर्क है। उधर मुजबा, इधर सालबा है। तो मौजू तो दोनों का एक है ना। जब दोनों का एक है तो तकरार आपने हज़फ की तो मौजू आपके पास एक रह गया। मौजू एक, महमूल दो। कहते हैं अब तरदीद बैन अल महमूलैन है। वहां तरदीद कहां थी? बैन अल कज़ियातैन। यहां तरदीद कहां आएगी? बैन अल महमूलैन। तरदीद कहां होगी? बैन अल महमूलैन होगी। और उन दोनों महमूलों का मौजू एक रहेगा। ठीक हो गई बात? इतनी बात समझ आ गई है? अच्छा, कहते हैं थोड़ा सा इजाफा मजीद दो। ये जो तरदीद है ना,
इस तरदीद को आपने जब मौजू की तरफ निस्बत देनी है तो आपने जो मौजू है आपका, याद रहे कि ये कजिया जो है मुरकबा जुजिया है और जुजिया की नकीज कुलिया होती है, तो ये मौजू क्या है? कुलिया है। ठीक हो गई बात। कजिया महसूरा में होता यह है कि महमूल का जो इसनाद है, मतलब जब हम कहते हैं ना कुल्लो इंसान नातिक, कुल्लो इंसान कातिब, कुल्लो इंसान आलिम, ये जो महमूल है इसका इसनाद मौजू के मसादीक की तरफ होता है। कल हमने ये बात कही थी, महमूल का इसनाद महसूरा में किधर होता है? मौजू के मिसदाक की तरफ। अगर कजिया है कुलिया तो महमूल का इसनाद जमी अफराद की तरफ जाएगा। मौजू महमूल का इसनाद किधर जाएगा? मौजू के जमी अफराद की तरफ जाएगा। अब रुको, कहते हैं आम तौर पे महसूरा में महमूल का इसनाद मौजू के मसादीक की तरफ जब होता है तो मिन हैसुल मजमू होता है, अफराद की तरफ होता है लेकिन मिन हैसुल मजमू होता है। एक है इसनाद जमी अफराद की तरफ मिन हैसुल मजमू, दूसरा है, दूसरी सूरत है महमूल का इसनाद जमी अफराद की तरफ मिन हैसुल मजमू नहीं, फर्दन फर्दन अलग अलग करके। ठीक हो गई बात? तो दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? एक बार आपने महमूल का इसनाद दिया जमी अफराद की तरफ, तो अब कजिया जो है पहले ऑप्शन में भी महमूल का इसनाद जमी अफराद की तरफ है, दूसरे ऑप्शन में भी महमूल का इसनाद जमी अफराद की तरफ है। फर्क कहां है? फर्क यह है कि पहले ऑप्शन में जमी अफराद की तरफ मिन हैसुल मजमू है, दूसरे ऑप्शन में जमी अफराद की तरफ मिन हैसुल मजमू नहीं बल्कि फर्दन फर्दन है। फर्दन फर्दन और मजमू के दरमियान वही फर्क है जो दुकानों पे जुमला और मुफरद में लिखा होता है। जुमला मुफरद कहीं नहीं पढ़ा यार तुमने? अच्छा, जुमला मुफरद का फर्क समझ गए हो ना? तो जुमले में पूरा पैकर लेना पड़ता है आपको, घर जाके देखेंगे उनमें से चाहे कौन ठीक निकला है कौन ठीक निकला है नहीं निकला है, और मुफरद में आपको एक है। ठीक हो गई ना बात? तो जुमला और मुफरद का फर्क जो है ना, वही जुमला और मुफरद वाला फर्क जो दुकान पे लिखा होता है ना, वही यहां पर है। जमी अफराद की तरफ मिन हैसुल मजमू, जमी अफराद की तरफ फर्दन फर्दन। ये बात समझ में आ गई ना? अब वापस आ जाओ। वो कहता है कि तुमने मौजू का तकरार खत्म करके मौजू एक बना दिया, मौजू एक महमूल दो हो गए। तरदीद किसके दरमियान दी है तुमने? बैनल महमूलैन ने, और वो तरदीद जो है उसकी निस्बत दोगे मौजू की तरफ, लेकिन मौजू की तरफ, मौजू के जमी अफराद की तरफ मिन हैसुल मजमू नहीं बल्कि फर्दन फर्दन आपने उस तरदीद की निस्बत देनी है। तरीकाकार समझ में आ गया? पहले तरीकाकार रिपीट करो ताकि फिर इसके अंदर एक रीजनेबल गुफ्तगू है, मैं वो बयान कर सकूं, और वक्त हमारे पास नहीं बचा है। पहला पॉइंट सेम है, उस मुजहा जुजिया को खोल देंगे। दूसरा पॉइंट भी सेम है, उन दोनों कजिया जुजिया बसीते के हम नकीजें निकाल लेंगे। तीसरे मरहले में थोड़ा फर्क है, क्या करेंगे? दोनों का मौजू, दोनों नकीजों का, नकीज़ैन का, कजियातैन नकीज़ैन, दो कजिए जो के नकीजें हैं उन दोनों जुजों की, इनका मौजू सेम है। मौजू जो है तकरार खत्म करके एक बना देंगे, मौजू एक तो महमूल दो हो जाएंगे। दोनों महमूल की तरदीद जो है उसकी निस्बत देंगे इस मौजूए वाहिद की तरफ, और मौजूए वाहिद की तरफ जब देंगे तो इसके अफराद की तरफ मिन हैसुल मजमू नहीं देंगे बल्कि फर्दन फर्दन देंगे। ये है प्रोसेस नकीज निकालने का। मिसाल तुम्हारे सामने हमने रख दिया है, इस मिसाल को आप अप्लाई दो, अप्लाई देने के बाद फिर मैं अगली बात कहने लगा हूं, और वक्त खत्म हो चुका है। लाचारी साहब परेशान तो नहीं है? अगली बात जो है वो मुसन्निफ ने जो कही है वो ये है, वो कहते हैं कि प्रोसेस हमको कुलिया से जुजिया का तब्दील करने की जरूरत क्यों पेश आई है? वही सेम ले आओ, दो पॉइंट में तो सेम है। तीसरे में आपने जब नकीजें जोड़ी हैं वहां कजियादान के दरमियान तरदीद दे दी, यहां आपने बैनल महमूलैन तरदीद दे दी। एक तो ये फर्क हो गया, पहला फर्क उसमें और इसमें क्या है? वहां तरदीद बैनल कजियातान है, यहां तरदीद बैनल महमूलैन है, एक फर्क ये है। दूसरा फर्क ये है
कि महमूलैन की तरदीद की इसनाद जब आपने दी है तो मौजू के अफराद की तरफ मिन हैसुल मजमू नहीं बल्कि मिन हैसुल फर्द तरदीद की निस्बत दी है मौजू के अफराद की तरफ। ये दो फर्क हैं उससे इसमें। आसन ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आई है? कहता है कि ऐसा करने की जरूरत हमें इसलिए पेश आई है कि ये जो हमने दो फर्क रखे हैं, अगर ये दो फर्क हम ना रखते और सेम वही तरीका, सेम वही प्रोसेस जो पीछे हमने रखा है वही जुजिया पर अप्लाई कर दें तो एक प्रॉब्लम हो जाता है। वो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बाज मवारद में, जमी में ना, बाज मवारद में हमारा असल जुजिया भी काजबा, उसकी नकीज भी काजबा। जब दोनों काजबा निकलते हैं तो नकीज का कानून क्या है कि नकीज ना दोनों एक वक्त में काजबा हो सकती हैं, ना एक वक्त में दोनों सादका हो सकती हैं। तो वो कानून यहाँ महफूज नहीं रहता। उस कानून को महफूज रखने के लिए फिर हमने तरीकाकार तब्दील किया है ताकि ये कानून महफूज रहे। वाज़ेह हो रही है बात? तो पिछला तरीका अगर अप्लाई करें तो बाज मवारिद में ये प्रॉब्लम आती है, और किसी एक मोर्द में भी प्रॉब्लम आ जाए तो पूरे कानून को वो तोड़ देती है। मसलन भी आ रहा है। हाँ जी, अब आओगे कौलहु मुसन्निफ का कौल वलाकिन फिल जुज़इयाते मुरकबा मुवज्जहा जुज़िया में नकीज निकालने के लिए क्या करेंगे? उस तरदीद की निस्बत देंगे इला कुल्ले फारदेन फारदेन। कुछ समझ आ गई बात? यानी ला यकफी, काफी नहीं है वही तरीका जो पीछे हम बयान कर चुके हैं यहाँ जुजिया में, वो यहाँ काफी नहीं है। सेम वो तरीका इधर अप्लाई नहीं कर सकते। फी अखज़े नकीज़िल कज़ियतिल मुरकबातिल जुज़ियाते, मुरकबा जुजिया में काफी नहीं है, नकीज हासिल करने के लिए काफी नहीं है। क्या काफी नहीं है? अल तरदीदो बैन नकीज़ैन, दो नकीजों के दरमियान, यानी बैन कज़ियतैन अल नकीज़ैन, दो कजियों के दरमियान तरदीद जारी कर देना काफी नहीं है। और वो दोनों जुज़ क्या हैं? वहुमा अल कुलियतान, वो दोनों कुलिया हैं। क्यों कुलिया है भाई? इसलिए कि जिस मुरकबा की नकीज निकाल रहे हैं वो जुजिया है, जुजिया की नकीज आसान। तो अब इस जो है इल्लत है किसकी? ला याकफी की। वो पिछले वाला तरीका यहाँ काफी नहीं है। क्यों काफी नहीं है? इस काद याकज़िबु अल मुरकबा अल जुजिया अल असलिया, हो सकता है बाज मवारद में। काद क्या माना देता है? बाज। काद बाज, तकलीफ यानी बाज, जब मुजारे पे दाखिल हो तो बाज मवारद में ऐसा हो जाता है। अल मुरकबा अल जुजिया अल असलिया, असलिया यानी जिसकी नकीज निकालना चाहते हो वो भी काज़िब। व यकज़िबु कहाँ गया? उसकी नकीज आगे आ रही है, वो भी काज़िब आएगी। कहते मसलन बाजुल हैवाने इंसानुन बिलफेले, बाज हैवान इंसान है बिलफेल ला दायमन, लेकिन बाज हैवान का इंसान होना जाती तौर पे दायमी नहीं है। बोलो कजिया साथ क्या कहता है? क्योंकि ये है मादा जरूरत का। इंसान का हैवान होना, बाज हैवान का इंसान होना जरूरी है। मादा क्या है? जरूरत का है। जब मादा जरूरत का हो तो वहां जाती तौर पे उसका इंसान होना दायमी है। आपने कहा कि जाती तौर पे उसका बाज हैवान का इंसान होना जाती तौर पे दायमी नहीं है। कजिया तुम्हारा क्या हो गया है? काज़बा। तो तुम्हारा ये मर्तबा क्या है? काज़बा। भाई यकज़िब, अब इन दोनों की नकीज़ें निकालो। बाजुल हैवान इंसान बिलफेल, नकीज क्या निकलेगी? कुल्लु हैवान इंसान दायमन, ठीक है। बला शया मिनल हैवान बे इंसान, साथ का है। अच्छा, वह यकज़िबु किला नकीज़ाए, जुज़ आए है, दोनों जुज़ों की नकीज़ें जो हैं वो भी ऐज़न काज़िब हैं। बहुमा, और वो नकीज़ें क्या हैं? ये हैं। नंबर 1 बाजुल हैवाने मुज़बा जुज़िया, नकीज़ क्या आएगी? ला शैअ मिनल हैवाने बे इंसान दायमन, ये पहले जुज़ की नकीज़। व कौलना दूसरे जुज़ की नकीज़ कुल्लु हैवान इंसान दायमन, दोनों काज़िब हैं।
ठीक हो गई बात? मिसाल मांगी थी तुमने, मिल गई आपको। असल भी कासिब, जो उसकी नकीजें निकाली, अब नकीजों के दरमियान तरदीद लाओ। नकीजें भी कासिब, असल भी कासिब, असल जुजिया भी कासिब, उसकी नकीजें निकाली वो भी, तो इर्तिफाए नकीजन हो गया ना? है दूसरी तो ठीक है, वाज़ेह हो रही है कि दोनों काज़िम है, लेकिन असल काज़िम होने में थोड़ा इस्तिवा हो रहा है। अच्छा, तो उसका कैसे समझ नहीं आ रहा? बाज़ुल इंसान, बाज़ुल हैवान है, इंसान बिलफिल, मसलन ज़ैद है, ये तो सच है, ला दाइमन, लेकिन दायमी नहीं है। हमारी बात चल रही है हैवान में, इंसान में नहीं। हम हैवान तो कोई और चीज़ का घोड़ा ले सकते हैं, तो वो दायमी नहीं है, इंसान एक तो मिनट हैवान। एक मिनट, बाज़ हैवान और बाज़ का इशारा किधर जा रहा है? ज़ैद की तरफ। बाज़ हैवान इंसान हैं बिलफिल, और जो बाज़ हैवान इंसान हैं बिलफिल वही ज़ाती तौर पे दायमन इंसान नहीं है। जो इंसान है, जो बाज़ हैवान बिलफिल इंसान हैं वही बाज़ हैवान ज़ाती तौर पे दायमन इंसान नहीं है। बस फिर हो गया ठीक है, टाइम बचाओ यार, मेहरबानी करो, ओवर हो गया टाइम। वही नाज़िन, तो अब क्या करेंगे? फतरी को अखज़ नकीज़ मुरकबाल जुज़ियाते, मुरकबा जुज़िया की नकीज़ निकालने का तरीका हम बदल देंगे, और वो तरीका ये है अंतुज़ा मौजू करार देंगे अफरादुल मौजूए कुल्लिहा, मौजू के जमी अफराद को। ठीक है ना? अब मेरी तरफ से साथ एक और लफ्ज़ लगा लो, फर्दान फर्दान, मौजू के जमी अफराद को मौजू करार देंगे, फर्दन फर्दन मौजू करार देंगे। क्यों? जरूरत अन्ना नकीज अल जुजियाते है अल कुलिया, क्योंकि जुजिया की नकीज कुलिया होती है, और जब कुलिया होती है तो दो नकीजें निकलेंगी, दो नकीजों का मौजू एक होगा। मौजू की तकरार खत्म करेंगे तो आपके पास मौजू एक, मामूल दो बचेंगे। सुम्मा युरत्ता दो बैना नकीज़ाए अल जुज़अैन, जुज़अैन की नकीजों में तरदीद देंगे। जुज़अैन की नकीजों से मुराद महमूलैन है, क्योंकि मौजू एक रह गया तो महमूल दो बच गया। महमूलैन, नकीज़ैन के महमूलैन में तरदीद देंगे, और तरदीद जो है सुम्मा युरद्दा दो बैना नकीज़ाए अल जुज़अैन, नकीज़ैन के दम तरदीद दे देंगे, और जो नकीज़ैन के दरमियान यानी महमूलैन के दरमियान आपने युरद्दा दो तरदीद जारी की है, ये तरदीद जो है बिन निस्बते इला कुल्ले वाहिदिन मिन तिलकल अफराद, कुल्ले वाहिदिन वाहिदिन, वाहिद दो बार कर लो, इला कुल्ले वाहिदिन मिन तिलकल अफराद। भाई क्यों ऐसा कह रहा हूं? ताकि हाँ फोकस हो जाए उन अफराद की तरफ, वाहिदिन वाहिदिन, हर फर्द की तरफ उस तरदीद की निस्बत और इसनाद चला जाए। ठीक है, वयुकालो फिल मिसाल मज़कूर, मिसाल मज़कूर में हम नतीज यूं निकालेंगे, कुल्लो हैवान फर्दन फर्दन, अब फर्दन फर्दन फिर इजाफा करो हमारी तरफ से, इम्मा इंसान दायमान व इम्मा लैसा बे इंसान है ना। जब फर्दन फर्दन कहोगे तो उन फर्दन फर्दन में से हर इंसान या वो हर हैवान का फर्द जो है फर्दन फर्दन, या वो दायमन इंसान है अगर वो घोड़ा भैंस बकरा है, ज़ात बकर खा लेते हैं, या वो इंसान नहीं है अगर वो घोड़ा भैंस वगैरह वगैरह है। वही नजर या सुकवाल नकीज, अब तुम्हारी नकीज सादिक बैठ गई है, असल कजिया काजब तो नकीज सादिक बैठ गया है। वाहिया, और ये जो नकीज हमने निकाली है ना, ये कजिया मुनफासिला नहीं है बल्कि हमलिया है, मुरद्दादतुल महमूल है। फ़क़ौलुहु मुसन्निफ़ का कौल इला कुल्ले फर्दन फर्दन, वो जो उसने लफ्ज़ बोला था ना, इसलिए बोला था ऐ मिन अफरादिल मौज़ूए, मौज़ू के जो अफराद हैं उन अफराद की तरफ तरदीद का इसनाद फर्दन फर्दन देना है, मिन हैसुल मजबू नहीं देना है। अस्सलामु अलैकुम। और कल ज़्यादा हम ले लिया, इसकी हम माफ़ी चाहते हैं।